Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. What we are going to discuss in this video, we will discuss together the quality of population in context of health. आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक और इंडिकेटर हेल्थ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have seen that how does the education influence the quality of population. We have seen that education is one of the important factor to improve the quality of the citizens. हमने देखा था लास्ट वीडियो में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है देश के लोगों के लिए और देश के विकास के लिए भी. But health is another factor which influences the quality of the population. And in this video, we'll discuss together that how does it is an important indicator of the quality of population. Now the thing is, what is the need of good health? हमें ज़रूरत क्या है अच्छी हेल्थ रखने की? If we want to grow our country to better, health conditions should be provided to all. अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं, हमारा अपना खुद का विकास चाहते हैं, तो हमें अच्छी हेल्थ कंडीशन लोगों के लिए गवर्नमेंट को सोचनी ही पड़ेगी और खुद भी हमें हेल्दी रहना पड़ेगा. बिकॉज आई डोंट थिंक दैट अनहेल्दी पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर हिम और फॉर द नेशन. अगर हम पूरे टाइम बीमार रहेंगे तो हम कैसे किसी और की या फिर खुद की हेल्प कर पाएंगे. एंड द थिंग इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय गुड हेल्थ. गुड हेल्थ होती क्या है? Actually, good health means not having a fatty body or bulky body. Actually, health is a multi-dimensional factor. And it means free from diseases and being physically active. Health क्या है? एक multi-dimensional factor है. ठीक है? जहाँ पे हम बीमारियों से दूर होते हैं, physically active होते हैं. Next is, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health states of the population has been the priority of the country. It means if an individual feels himself or herself physically fit, active, or fresh, it means he possesses the good health. So, keeping in mind the importance of health, we can say that this is the priority of the country to improve the health status of its people. अगर कोई व्यक्ति अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, एक्टिव महसूस करता है, इसका मतलब ये है दैट ही इज़ क्वाइट हेल्दी. और अगर ऐसा है तो हमारे देश का विकास में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और देश का ही नहीं खुद का भी. नाउ व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस. इसको बढ़ाने के लिए, हेल्थ कंडीशन को अच्छा बनाए रखने के लिए आखिर क्या कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? Steps taken to improve the health condition of our population. अगर हम इसकी बात करते हैं तो improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. And student, here I want to tell you that in your question paper this can be asked that how health can be an important indicator in improving the quality of population. आपसे ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि कैसे हेल्थ जो है एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को एसेस करने का, उसको इवेल्युएट करने का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है. और इट कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन. हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं हेल्थ कंडीशन को अच्छा करने के लिए. ठीक है? सो एक्सेसिबिलिटी की बात अगर हमने की हमारे इस पॉइंट में कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, इसका मतलब ये है दैट द हॉस्पिटल शुड बी और नियर टू द पीपल. हॉस्पिटल इतने दूर ना हो कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा वहाँ पहुँचना ही टफ हो जाए. और नेक्स्ट जो थिंग है फैमिली वेलफेयर की हमने बात की, मीन्स फैमिली वेलफेयर मीन्स पेरेंट्स should be attentive to the health care of their children and they should provide the nutritious food to their children.
अपने बच्चों को अच्छी डाइट दें, उनके हेल्थ के लिए अटेंटिव रहें पेरेंट्स। एंड the government should focus to provide the healthcare facility to the underprivileged section of the society. वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन में सेगमेंट में आते हैं, जो गरीब हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा ताकि उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके. If you look at the page number of your book 24, if you look at the page 24, table 2.2, health and infrastructure over the air. यहाँ पे हाँ एक बात और है, द डाटा में बी चेंज्ड बिकॉज आई हैव द ओल्ड एडिशन ऑफ बुक, मेरी फ्रेश बुक नहीं है, आपकी अगर नई बुक होगी तो डाटा में भी अलग हो सकता है. दिस डाटा शोज यू द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सेक्टर. ये डाटा आपको क्या दिखाता है, कैसे हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई. Now we have seen that several steps taken to improve the health condition, and now we'll see that what are its results and challenges. इसका outcomes क्या था और इसको करने में हमें क्या challenges झेलने पड़े. ठीक है, outcomes की अगर हम बात करते हैं, come to the first point, increase the life expectancy over 68.3 years in 2014. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर विच अ पर्सन इज गोइंग टू लीव एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. एक व्यक्ति की औसतन आयु, और इसमें हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हमने दी, हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी, इस वजह से ये कहीं ना कहीं बढ़ी है. सेकेंड पॉइंट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी IMR, कभी कभी एब्रिविएशन आपसे पूछता भी है. It has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016. Infant mortality rate, देखिए infant क्या? Infant means the children under 1 year, यानी वो बच्चे जो कि 1 साल के अभी हुए नहीं, उन्हें infant कहते हैं. Infant mortality rate is the death of child under 1 year of age. 1 साल से कम के बच्चों की जो डेथ रेट है वो कितनी है उसके बारे में ये बताता है, और इसमें भी हमारे यहाँ काफ़ी कमी आई है. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट, क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड टू 20.4, यानी कि पेस ऑफ बर्थ रेट हैव बीन स्लो नाउ. बर्थ रेट भी कंट्रोल हुआ है एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन चेक्ड. जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ी सी कमी आई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डेथ रेट 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इट मीन्स डेथ रेट की अगर बात करते हो आप, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल per 1000 who die during a particular period of time. It means comes down, which shows that our healthcare facilities have been improved and we can control the diseases. डेथ रेट में कमी आई है. पहले लोग बेतहाशा मरा करते थे, ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उनको प्रॉपर, लेकिन अब डेथ रेट में कमी ये शो करता है कि हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया है और डिजीज़ पे हमारा अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है. नाउ पॉइंट 5, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ी है और प्रॉपर केयर चिल्ड्रंस को दी भी जा रही है. हर पेरेंट्स आज की डेट में अवेयर है, इस टाइम बच्चे को ये खिलाना है, वो खिलाना है, अनहेल्दी फूड नहीं देना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ. लॉन्गेटिविटी लाइफ मतलब लंबा जीवन. अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है एंड दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस. लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है इसके कारण. पॉइंट 7, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड. आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान काफ़ी हद तक सक्सेस रहा. अगर आप नहीं भी जा रहे हो, पोलियो ड्रॉप आपने नहीं पिलाया, रेलवे स्टेशन, इवन आपके घर पे नॉक करके वो आते हैं, पूछते हैं आपसे घर में कोई ऐसा बच्चा है, तो उसको वो घर पे दे के जाते हैं. तो स्कूल में, रेलवे स्टेशन पे, मतलब हर जगह, मार्केट में काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने काम किया इस पर.
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उनको न्यूट्रिशियस डाइट देने के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया, मिड डे मील वगैरह शुरू की गई। ठीक, ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ बेटर हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ें बेटर हेल्थ केयर का परिणाम है। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की। हमारे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या बाधाएं हैं। Actually, there are many places in India which do not have even these basic facilities. हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां आज भी ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ हैज़ बिन इम्प्रूव्ड अनइवनली। कहीं पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं तो कहीं नहीं भी हैं। सो द कंडीशन ऑफ रूरल एरिया इज़ स्टिल वर्स। अगर हम गांव की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। Look at the next point. Only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. हमारे देश में आज भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कम है अगर आप पॉपुलेशन से कंपेरिजन करो। India is having such a large population and relatively these number of medical colleges are less. Now, just 4 states, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka have maximum number of medical colleges. It means only these 4 states have the majority of medical colleges. केवल इन्हीं 4 राज्यों में मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी जगह अब भी नहीं है। Now we'll conclude that healthcare in India is very expensive. Our majority of the population is underprivileged section, and in this way we see that how health is an important indicator which defines the quality of population. हम आज भी देखते हैं पूरी उम्र हमारी निकल जाती है किस चीज़ में, सेविंग करने में। कहीं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए सेविंग करके रखो। और एक और चीज़, बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इसीलिए पूरी उम्र पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, सेविंग करते जाते हैं। उनको अच्छा फ्यूचर देना है ना। जब वो बड़े होंगे उनके एजुकेशन में आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कहीं कोई अचानक से दिक्कत हो गई तो पूरी उम्र हम एजुकेशन और मेडिकल पे ही खर्च करते रह जाते हैं। और इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो कितनी एक्सपेंसिव है ये हम सब जानते हैं। इस तरीके से हमने देखा हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को असेस करने का। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we'll discuss about unemployment, and till then stay connected, keep learning. Thank you very much, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and also click on bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you for today. Thank you. Goodbye. Jai Hind.